Good morning, students. Today we will continue our chapter first population, distribution, density, growth and composition. We discussed in this chapter distribution of population. There is uneven distribution of population among the various states, various union territories and various regions. Density means number of people lives in particular unit area, and that particular unit area is generally per square kilometer area. So number of people lives in per square kilometer area, that is called the density of population. There are three types of density of population: high density, middle density and low density areas. High density areas, more the people, more than 400 population is the high density area. 400 people lives in per kilometer square area. And middle density, 200 to 400 density are the called middle density areas. And low density areas or low density regions, the areas or regions which have less than 100 people per square kilometer area, that is called the low density area. Low density area like the hilly areas, like the plateau areas and uneven land areas or rugged topography areas have the low density area, like the Jammu and Kashmir and Sikkim. These areas are the low density area. Arunachal Pradesh. Growth of population means the increase of population. The number of population is increased is called the growth of population. There are three main components of growth of population: birth rate, death rate and migration. Where birth rate is high, then population growth in positive, and where death rate is high, then the birth rate, then that areas have the negative growth rate. And migration, the migrations are two types: in migration and out migration. Where the in migration is more, the population growth is increased or the population growth is positive, and the out migrant areas have the low growth of population or the less population. Now our topic is composition of population. Composition of population means एक पर्टिकुलर एरियाज में किस टाइप की पॉपुलेशन रहती है, उनमें डाइवर्सिटीज क्या क्या हैं, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. अब इनमें डाइवर्सिटीज के जो क्राइटेरिया हैं, मे बी इकोनॉमिकली, मे बी एज, मे बी सेक्स बेस्ड, मे बी कम्युनिटी बेस्ड, may be religious based, may be occupational based. तो population composition, the first characteristics according to rural urban population. When we see the data of census of any country or any state, then we see that rural urban population means rural population is more than the urban population. भारत के लिए वैसे ही कहा जाता है कि भारत गांव का देश है, और इसका गांव का देश, द लैंड ऑफ विलेजेस कहने के पीछे एक रीजन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, according to census 2011, 68.8% population in India lives in villages area, and only 31.2% population lives in a urban areas. यद्यपि ये जो पॉपुलेशन का परसेंटेज था, ये कुछ सालों पहले डिफरेंट था. फॉर एग्जाम्पल, at the time of independency, there is 80% population lives in rural areas and only 20% population
lives in the urban areas. But टाइम पासिस जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया और माइग्रेशन की वजह से तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर फैसिलिटीज लाइक द एजुकेशन, लाइक द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लग्जरियस लाइफ and better transportation and other facilities or living standard increase in the urban areas, then the population percentage is high in urban areas. अर्थात जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, अर्बनाइजेशन होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज कम होता गया और अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज इंक्रीज होता गया. अगर हम डेटास को देखते हैं तो इन इंडिया 6,40,867 villages all over India include 28 state and 9 union territories. There are 6,40,867 villages in India, and in these villages 5,97,608 villages or 93.2% villages are inhabited. Inhabited का मतलब यहाँ पर जितने villages all over India हैं उनमें से 93.2% villages हैं वो inhabited हैं, मतलब यहाँ लोग रहते हैं. अगर हम स्टेट वाइज कंपेयर करें तो अपने बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में दिया गया कि कौन से स्टेट में रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है. तो हाई रूरल पॉपुलेशन, द स्टेट्स लाइक द बिहार एंड सिक्किम हैव द हाई रूरल पॉपुलेशन, मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन में ज़्यादा शेयर रूरल पॉपुलेशन का है. More than 50% people lives in villages areas or rurals. Least rural population means जहाँ पर rural population कम है और urban population ज़्यादा है. तो the states like the Goa and Maharashtra, these have little population in rural areas, less than 50%. मीन्स गोवा और महाराष्ट्र में गांवों की संख्या बहुत कम है, वहाँ 50% से भी कम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में लिव रहती है. देयर इज वेरिएशन इन द रूरल एरियाज पॉपुलेशन. सम एरियाज हैव द low population in rural villages and some areas, some states have the high population in the rurals or villages. अर्थात कुछ हिस्से देश के ऐसे हैं जहां पर 200 से भी कम लोगों वाले गांव हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां गांव की पॉपुलेशन 17,000 और इससे भी ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान लाइक द जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इन एरियाज में कुछ गांव ऐसे हैं जहां लेस देन 200 पीपल्स उन विलेजेस में रहते हैं. रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ये भी एक एग्जाम्पल है जहां पर गांव जो हैं उन गांवों की पॉपुलेशन 200 से भी कम पर्सन है, मतलब वहाँ 200 से भी कम लोग रहते हैं. और दूसरी तरफ इन अदर हैंड वी सी दैट द मैनी विलेजेस इन केरलाज एंड महाराष्ट्र हैव द पॉपुलेशन मोर देन 17,000. 17,000 से भी ज़्यादा वहाँ के गाँव में लोग रहते हैं. इट मीन्स द साइज ऑफ विलेजेस इज मोर in the Kerala and Maharashtra states and the size of villages is less than western part of Rajasthan and run of Kutch area in the Gujarat. The other composition of population is linguistic composition. It means language based पर कि India is a vast country. It is the 7th largest country of the world according to land area.
एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो इतना बड़ा कंट्री और उसमें भी डाइवर्सिटीज, सो मैनी डाइवर्सिटीज इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम देखें तो कई तरह की यहाँ पर विभिन्नताएं हैं। तो ग्रियर्सन, एक पर्सन हुए ग्रियर्सन महोदय, उन्होंने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया की लैंग्वेजेस के ऊपर सर्वे किया उन्होंने, एंड दैट सर्वे वाज कंप्लीटेड इन 1928, फ्रॉम 1903 टू 1928। इस समय एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रियर्सन पर्सन की चेयरमैनशिप में हुआ और उसमें 179 लैंग्वेजेस, उस सर्वे में ये दिखाया गया कि इंडिया में 179 तो लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स, अब लैंग्वेजेस का मतलब भाषाएं और डायलेक्ट्स का मतलब है बोलियां। भाषाओं की ही सब पार्ट हैं, कुछ बिखरे हुए रूरल वर्ड्स जो यूज में लेते हैं या लोकल वर्ड्स यूज में लेते हैं, दैट आर कॉल्ड द डायलेक्ट्स। तो अपने यहाँ पर इतनी तरह की लैंग्वेजेस हैं और 544 टाइप्स की डायलेक्ट्स हैं। कहा भी जाता है कि यहाँ पर हर 5 कोस पर पानी बदलता है तो हर 10 कोस पर वाणी बदलती है। पानी बदलने का मतलब है पानी का टेस्ट ऑफ वाटर इज चेंजेस आफ्टर 15 किलोमीटर इन एरियाज, एंड आफ्टर 30 किलोमीटर एरियाज द some words are different uses in other languages that are called the dialects। तो कुछ बोलियां होती हैं कि 30 किलोमीटर के एरियाज के बाहर आप जाते हैं तो वहां पर आपको अलग बोलियां सुनने को मिलती हैं जो वो लोग बोलते हैं। एंड अब बात करें हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया की, तो देर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन 22 में भी कुछ लैंग्वेजेज ऐसे हैं जिनको बोलने वालों की जो संख्या है, नंबर ऑफ पीपल्स स्पीक्स द लैंग्वेजेज आर हाई, एंड सम लैंग्वेजेज हैव द लेस पार्टिसिपेंट्स और लेस स्पीकर्स लाइक द बोडो, संथाली एंड संस्कृत। इनको बोलने वालों की संख्या कम है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, इनको बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। द अदर फैक्टर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज द रिलीजियस कंपोजिशन। रिलीजियस कंपोजिशन मीन्स द पॉपुलेशन डिवाइडेड अमंग वेरियस रिलीजन्स। देर आर 6 मेजर रिलीजन इन इंडिया। These are the Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhist and Jainis. Hindus, the 70% to 90% population of states have the Hindus population, अर्थात नंबर ऑफ हिंदूज हैं इंडिया में ज़्यादा हैं, मेजोरिटी ग्रुप में है और इसका शेयर 79.8% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है। एंड कुछ एरियाज को छोड़ करके लाइक दी जम्मू एंड कश्मीर एरियाज एंड वेस्टर्न बंगाल एरियाज, इन एरियाज को छोड़ करके ये हिंदूज का पॉपुलेशन का जो शेयर है वो सभी स्टेट में 70 to 90% तक है। मुस्लिम्स आर द 14.2%। मुस्लिम्स आर द माइनॉरिटी, मेजर माइनॉरिटी इन इंडिया, मतलब लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया है मुस्लिम्स। माइनॉरिटी में है बट लार्जेस्ट नंबर में है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी एरियाज़ में हिंदू ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ में मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में ना होकर के मेजॉरिटी में है। लाइक दिस सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न बंगाल, केरला, इन एरियाज़ में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में ना होकर के मेजॉरिटी में हैं। क्रिश्चियंस हैव द 2.3% शेयर इन द ऑल ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्रिश्चियंस साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा हैं। मेघालय, असम, नागालैंड,
मणिपुर, त्रिपुरा, केरला और तमिलनाडु, इन एरियाज में क्रिश्चियंस का परसेंट ज़्यादा है। Sikhs are the 1.7% in all our population of India, and in Punjab and Haryana and Jammu areas the Sikhs percentage is more than the other parts of the India. Buddhist 0.7%, Jainis 0.4%, and others are 0.9%. So that is the religious composition of Indian population or in India. The students, next type of population composition on the basis of working, on the basis of economic status, कि उनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किस किस टाइप की पॉपुलेशन वहाँ रहती है। तो द कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन में देर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्कर, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। मेन वर्कर्स, ए पर्सन इज having a job or work more than 183 days in a year or more than 6 months in a year। 183 days या 183 days से ज़्यादा एक साल में उसे काम मिलता है, that were the main workers। and the workers which have less than 183 days or less than 6 month work in a year, they are categorized as a marginal workers, and the main workers and marginal workers population have is the 39.8% of total workers। जितने भी वर्कर्स हैं उनमें इन दोनों को मिलाकर के 39.8% वर्किंग पॉपुलेशन है। एंड नॉन वर्कर्स or the unemployed or underemployed। Unemployed means the people want to do any job, willing to do any job, but they have not a job or any type of work। मतलब काम करने की इच्छा तो रखते हैं बट उनके पास काम नहीं है। They are non-workers or unemployed persons। तो हम यहाँ देखते हैं कि ओनली 39.8% पॉपुलेशन है वो मेन वर्कर की कैटेगरी में या मार्जिनल वर्कर की कैटेगरी में आती है, जबकि 60% पॉपुलेशन नॉन वर्कर और अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी कितनी है। 60% पॉपुलेशन है वो 40% पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट है। The other categories are called the occupational categories, like the sectors of economy। There are 3 sectors of economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector। उन्हीं की तरह occupational categories बनाई गई हैं। उनमें 4 टाइप की categories हैं। कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर मीन्स फार्मर्स, जिनके पास अपनी लैंड है और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दे आर द cultivators। and India is called the agricultural land, कि यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर आती है वो एग्रीकल्चर में शेयर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो देर आर 54.8% पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंगेज्ड इन कल्टीवेटर एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल लेबर मीन्स है जिनके पास अपनी पर्सनल लैंड नहीं है, वो लीज पर लेकर के, रेंट पर लेकर के या एज ए एग्रीकल्चरल लेबर काम करते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फीमेल डूइंग इन द हाउस होल्ड वर्क्स। जनरली महिलाएं हाउस होल्ड वर्क करती हैं, घरों में काम करती हैं, बट कुछ महिलाएं अब बाहर भी ऑफिसेज में भी काम करने लगी हैं। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स and other workers, these are the 4 category of the occupational basis, occupational categories।